Okay, so let's start this chapter. This is chapter number 11 of programming. इस chapter के अंदर we need to discuss regarding the values that are assigned to your variables and constant. We need to understand in detail that what are variables and constants, ताकि पेपर के अंदर अगर वो आपसे पूछें, जैसे अभी recent 2023 का मैं एक पेपर करा रहा था, उस पेपर के अंदर they were asking to you के my date of birth का constant क्या है, variable क्या है, तो आपको आना चाहिए. प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, आइटरेशन के अंदर इफ का केस और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सिलेक्शन में डिफरेंट लूप्स क्या होते हैं, काउंट कंट्रोल पोस्ट कंडीशन एंड प्री कंडीशन, एंड हाउ कैन वी राइट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग व्हाइल वर्किंग विद फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहले लेट्स टेक अ क्विक ओवरऑल व्यू. हमारे पास बेटा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. कॉन्स्टेंट्स हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर वो वैल्यूज होती हैं जो कभी भी हमारे पास चेंज नहीं होती. हमारे पास वेरिएबल्स कौन सी वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल्स हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज हो जाती हैं. इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी इश्यूज इन फंक्शंस, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? Like for example, if it's a student age could be different for a different number of students. Like a student age could be either 15, 20 or 25. That means that this is an example of a variable. However, if I'm discussing to you regarding constants, so constants are those values that will remain constant. Like pi is to the value 3.14, it would remain the same, it will not change. Are you getting this? So moving forward, we need to discuss that what are functions. Now functions are basically some group of statements or set of statements that can be grouped together, that can be collected together, so that you do not need to write it again and again in a program. Like for example, if I take an example of a program, और उस program के अंदर कोई एक ऐसी certain group of statements है जिनको मुझे बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उनको बार बार लिखने के बजाय अब मैं करूंगा क्या, मैं उनका एक फंक्शन बना दूंगा. जब बेटा मैंने उनका एक फंक्शन डेवलप कर दिया, तो अब उसी फंक्शन को मैं रिपीटेडली यूज कर सकता हूं, जिसको मैं उसके नाम से कॉल कर लूंगा, एंड आई वुड नॉट नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन. आर यू गेटिंग दिस? Functions are those statements that are used that are grouped together and they can be called within a program. अब मुझे बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. And functions always return a value. Procedures never returns a value. Do you have any confusion in this? These are your basic concepts. If you want to write anything, do it right now. The second thing that is again and again asked in your paper that are regarding your library routines. Library routines क्या है बेटा? Library routines are tested. They are ready to use programs. They are ready to use routines that are available in your system so that they can be incorporated into your program. आपको पूरा program, पूरा routine लिखने की जरूरत नहीं है, ये बने बनाए चीज है. Last आपके पास है procedure. Procedure and functions are going to be same, because this is again a group of statement that can be grouped together and called easily in a program. However, procedures do not return a value. इसमें आप में से किसी को कोई confusion? No confusion? Okay, let's move ahead. Constants and variable, we have already discussed that constants are all those values that cannot be changed during the execution of a program, and a variable is a name value that can be changed during your execution. Like let's check it. For example, I have an identifier name that is radius. What is going to be the description of that? It stores the radius input. What is a volume? What is a surface area? What is a pi? However, pi is set as a value of constant, because the value of pi is constant. Why is that? Because it is not changing, and you can declare that. Furthermore, आप अपने प्रोग्राम के अंदर उसको डिक्लेयर कर सकते हो. रेडियस को क्या डिक्लेयर किया है? रियल से. वॉल्यूम को किससे डिक्लेयर किया है? रियल से. सरफेस एरिया किससे डिक्लेयर किया है? रियल से. कांस्टेंट पाई को किससे डिक्लेयर किया है? वैल्यू से. इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा?
Now, programming constructs. यहाँ पे बेटा हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आपके पास वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, जिनसे आपका प्रोग्राम बनता है। अब सबसे पहला प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज इफ देन एल्स एंड इफ एंड केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, जो हमने ओ लेवल्स के अंदर सिलेक्शनल स्टेटमेंट में भी हमने उसकी बात की थी। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज जब यूज होती हैं, जब आपके पास if then else and if you can use when you have two different choices, and when you have a several choices you can use case of otherwise and case। ये दो मेरे पास लूप्स होते हैं। आई होप आप लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर इनके जो स्ट्रक्चर है वो देखा होगा कि इफ देन एल्स एंड इफ हम कैसे लिखते हैं और केस ऑफ अदरवाइज हम कैसे लिखते हैं। राइट राइट इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अब यहाँ पे बेटा क्या है, मैंने डिक्लेयर कराया अपनी चॉइस को किससे, डेटा टाइप क्या है मेरी, इंटीजर। मैंने आउटपुट क्या कराया कि अपनी चॉइस एंटर करो, फिर मैंने इनपुट कराया चॉइस को। अगर मेरी चॉइस का केस फर्स्ट है तो मैंने क्या आउटपुट करूंगा, रूटीन वन। अगर मेरा चॉइस का केस टू है तो मैं क्या आउटपुट करूंगा, रूटीन टू। अगर मेरा ऑप्शन थ्री है तो मैं क्या आउटपुट करूंगा, रूटीन थ्री ऑफ। अगर किसी ने फोर से सिक्स तक एंटर किया तो उसको मिलेगा रूटीन नॉट रिक्वायर्ड। अगर किसी ने 10 एंटर किया तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और अगर किसी ने ये 10 की 10 वैल्यू को एंटर नहीं किया तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, incorrect choice। So that means that when you have a number of values, when you have several values all together, what you use is case of otherwise। Do you want to write this for your practice? Do it। नाउ लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग लूप्स। हमारे पास बेटा लूप्स कौन कौन से होते हैं, लूप्स हम यूटिलाइज क्यों करते हैं, हम यूज क्यों करते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू ऑल हैव टू राइट इट डाउन बिकॉज यू हैव क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। Loop enables your section of code to be repeated again and again as required। That means that if you want certain program of your code or certain elements and you want to loop them, you want to repeat them again and again, again and again, so you can construct them in a different ways। For example, one example of a count control loop I have is for to next। ये कब चलेगा ये वाला लूप बेटा, ये वाला लूप जब चलेगा जब आपके पास आपके सेट नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको पता होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू वर्क फ्रॉम, इफ आई हैव 1 till 10 स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में अगर 1 से 10 स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता है उनका काउंट, तो मैं कौन सा लूप यूज करूंगा, काउंट कंट्रोल लूप। राइट सिमिलरली अगर मेरे पास पोस्ट कंडीशन लूप है, पोस्ट कंडीशन लूप मींस के ये लूप आपके एंड वाले पॉइंट में चेक करता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ठीक है, वरना है प्रोग्राम नहीं चलता। फॉर एग्जांपल रिपीट दिस टास्क अगेन एंड अगेन अंटिल ये वाली वैल्यू मीट नहीं हो जाती। अब अंटिल कब आ रहा है, सबसे एंड में, तो ये एक दफा कम से कम चलेगा और एंड में चेक होगा कि क्या वो लिमिट मीट हो रही है या नहीं। अगर वो लिमिट अंटिल की मीट हो गई तो मतलब प्रोग्राम आपका आगे नहीं चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं मीट हुई तो प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। वो लिमिट कुछ भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को आप जब तक चलाते रहो जब तक मेरे पास 5 ए ग्रेडर नहीं आ जाते मेरे 100 स्टूडेंट्स में। राइट तो ये आपके पास मिनिमम एक दफा चलेगा। थर्ड पॉइंट आई हैव राइट हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्री कंडीशन लूप दैट इज व्हाइल डू एंड व्हाइल। अब बेटा व्हाइल डू एंड व्हाइल के अंदर ये है कि आपके पास जरूरी नहीं है कि ये एक भी दफा चले, क्योंकि अगर शुरू में इसके अंदर मैंने कंडीशन लगा दी कि व्हाइल अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये चलेगा वरना नहीं। आप लोग अपने पास ये नोट कर लो कि दिस इज अ काउंट कंट्रोल लूप एंड दिस इज अ प्री कंडीशन लूप। बेटा रिपीट एंटल मीन्स कि आप एक ही काम को सिलेक्टेड वे के में आपको पता है कि मुझे 10 दफा चलाना है, मुझे 20 दफा चलाना है, मुझे 30 दफा चलाना है, सो यू कैन राइट इट फॉर काउंटर 1 to 30, फॉर काउंटर 1 to 40 दैट हैज टू बी रिपीटेड अंटिल सर्टेन टाइम्स। मैं बोल इस वजह से नहीं रहा कि तुम लोग सुनो, मैं बोल इस वजह से रहा हूं ताकि जब पेपर में सवाल अगर पूछा जाए कि कौन सा लूप कब चलेगा या ये लूप्स कौन से यूटिलाइज होंगे, सो यू शुड बी एबल टू राइट देम एंड यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई देम। नहीं, जब तक कंडीशन आपकी मीट ना हो जाए, ये नहीं बोलो फॉल्स हो जाए।
जब तक कंडीशन आपकी मीट ना हो जाए जब तक चलेगा, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, चाहे ट्रू हो या फॉल्स, इट डिपेंड्स। इज दिस ऑल क्लियर? अच्छा, अब आई एम ऑल्सो, मैं इनकी कंडीशंस भी लिखवा देता हूँ कि बेटा किसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन सा लूप जो है आपके पास कब तक चलेगा, ये भी अपने पास एक जगह पे नोट कर लो। Beta, kindly note this down. Account control loop works when you have a number of iterations. A precondition may have no iterations, and a post condition always works that have at least one iteration. Iteration means repetition. Okay, now let's discuss ahead. Right here, you can also identify some number of loops that are available to me, right? Like for example, if it is a repeat until loop and if it is a while do and while loop, you can see the difference between both of them. That means that repeat this until this is my certain limit, the limit that I was earlier talking about. कि जब तक मेरी ये लिमिट पूरी नहीं हो जाती, यहाँ पे कहा है कि आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा और 10 से कम होनी चाहिए। मतलब है कि जब तक 0 से 9 तक वैल्यू रहेगी, 10 तक रहेगी तो चलेगा, 11 हुई तो नहीं चलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके बाद बेटा हमारे पास अवेलेबल है वाइल टू एंड वाइल लूप। वाइल टू एंड वाइल लूप के अंदर आप किसी भी वैल्यू को आउटपुट कराते हो, आपके पास यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है कि जब तक इस सर्टेन रेंज के अंदर वैल्यू आपके जब तक ये लिमिट आपके पास है, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया, पोस्ट कंडीशन, प्री कंडीशन। यहां तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ वी नीड टू डिस्कस 1.3। Now we are going to discuss 1.3, which is structured programming और structured programming के अंदर the key terminologies that we need to discuss today is regarding the parameters। अब पेपर के अंदर आपके पास ये वर्ड जो है ना बार बार यूज होते हैं बेटा। लूप्स क्या है, प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, ये पैरामीटर क्या है, बाय वैल्यू क्या है, बाय रेफ क्या है, हेडर क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक पैरामीटर की एग्जांपल लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कोई भी एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब इस रेक्टेंगल के बेटा कोई ना कोई आपके पास पैरामीटर्स हो सकते हैं, सच एस वाई एक्सेस या सच एस एक्स एक्सेस, राइट। अगर दैट मीन्स कि वो जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो आपके पैरामीटर्स हैं।
पैरामीटर्स आपके पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब है? हर एक वैल्यू जो आपके पास चेंज हो सकती है। ये पैरामीटर अप्लाई किस पे होते हैं? प्रोसीजर और फंक्शन के ऊपर। और अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, प्रोसीजर्स नेवर। दैट अलाउ one to pass in a value for the procedure to use it। पैरामीटर्स की वैल्यू हम पास करा सकते हैं फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर, ताकि हम उनको यूटिलाइज कर सके। इसमें कोई प्रॉब्लम? जैसे कि एक रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट हो सकती है, एक स्टूडेंट की एज हो सकती है, एक स्टूडेंट का नाम हो सकता है, ये सब क्या है? उसके पैरामीटर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम? बेटा सेकंड मेरे पास क्या है? बाय वैल्यू। अब बाय वैल्यू आपके पास वो होता है कि आप अपने प्रोसीजर के अंदर किसी भी पैरामीटर को पास करते हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप उस प्रोसीजर से चेंज नहीं कर सकते। तो दैट मीन दैट व्हेनेवर यू यूज दिस बाय वैल्यू वर्ड, इट इज अ मेथड ऑफ पासिंग अ पैरामीटर टू योर प्रोसीजर in which the value of the value variable cannot be changed by that procedure। वो प्रोसीजर के दौरान वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अगर आप बाय वैल्यू लिखते हो, क्योंकि आपका प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। Whereas when it comes to a my reference के अंदर this is a method of passing a parameter to a procedure in which the variable value can be changed। अब my reference के अंदर आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन बाय वैल्यू में आपकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। Similarly, if I discuss regarding header, procedures and functions, तो procedures and functions के अंदर अब header file क्या होती है? The first statement in the definition of a procedure or function, जिसमें उसका नाम होगा, उसमें कौन से पैरामीटर पास हो रहे हैं, उसके फंक्शन की टाइप क्या है, उसमें क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो किस में आएगी? हेडर में। और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं बेटा? कौन सी वैल्यू आपने प्रोसीजर में पास की है। इसमें आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम? डू यू वांट टू राइट एनीथिंग? I have 2 minutes left. Procedures we have already discussed that these are similar tasks to perform to make the use of group statements. That means instead of writing it every time, we can make the use of the subroutines known as procedures। जैसे procedures हमारे पास यहाँ पे available हैं। फंक्शंस बेटा क्या है? फंक्शंस मैंने अभी आपको बताया कि एक ही टास्क को बार बार रिपीट ना करना पड़े। दे कैन प्रोड्यूस एन आंसर इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दीज टास्क अगेन एंड अगेन। वी कैन मेक यूज ऑफ द फंक्शंस, और फंक्शन हमेशा से किसी भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। मैं फंक्शंस और प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। पास्ट पेपर्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों का ये चैप्टर एंड होता है। अच्छा, डू यू गाइस नो व्हाट आर सब रूटीन्स? डू यू नो व्हाट आर सब रूटीन्स? लिख लो। व्हाट आर सब रूटीन्स? Subroutines are self-contained section of your program that performs a specific task. Is this clear to all of you?